students, we are today going to do type 3 of integration, that is integration by partial fractions. For problems of the type 1 upon AB, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में दो टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए. We use this formula 1 upon AB equal to 1 upon B minus A, 1 by A minus 1 by B formula. This formula we can use provided coefficient of x or x square in both brackets are same. Understand this, understand the right hand side. This is, we take LCM. B minus A gets cancelled. We get 1 upon AB, which is the LHS. So RHS equal to LHS. So whenever we have 1 in the numerator and two terms whose multiplication is in the denominator, for example, one upon x plus 1 into x plus 4 is like 1 upon AB, or 1 upon न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट, या तो दोनों ब्रैकेट में x के टर्म्स में फैक्टर आएगा या तो x स्क्वायर के टर्म्स में आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर इन बोथ ब्रैकेट्स आर सेम. दोनों ब्रैकेट में कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. मैंने बोला सेम होना चाहिए, 1 होना चाहिए ऐसे नहीं लिखा है. वी कैन हैव दिस ऑल्सो 1 अपॉन 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4. दोनों ब्रैकेट में कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. x होगा तो x का, x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर का. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके बेनिफिट होगा. ऑलराइट, दिस इज वेरी इजी टू प्रूव. वी हैव डिराइव्ड द प्रूफ, वी हैव डिराइव्ड इट. ऑलराइट, वी नाउ डू द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज टाइप 3. Question type 3. One upon this is like 1 upon AB. This bracket is A, this bracket is B. This is 1 upon AB. So we can use this formula 1 upon B minus A. Inside the bracket 1 upon A minus 1 upon B. Whatever formula we apply, we have to supply. We write the formula 1 upon AB equal to 1 upon B minus A. What is coefficient of x here? 1. Here also 1. When you open this bracket, x gets cancelled to give you 1 by 2. अब इसको ये हाफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो जाएगा.
ये 1/x+1, 1/x का log x, so 1/x+1 का log x+1 अपॉन 1, कोएफिशिएंट 1 है. This is log m minus log n, so log m upon n. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दोनों ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ x सेम होना चाहिए. यहां कोएफिशिएंट 1, यहां पे भी 1. न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट होना चाहिए. 1 अपॉन a इंटू b, 1 अपॉन a इंटू b, सो 1 अपॉन b माइनस a, 1/a माइनस 1/b. सो जब भी 1 अपॉन ab टाइप का क्वेश्चन आएगा, वी यूज दिस फॉर्मूला, लेकिन कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. This is very easy to apply. All right. Type 3 का question 1. Now we write important note. This method, whenever we have two polynomials का ratio px upon qx, where px and qx are polynomials in x such that power of numerator is less than power of denominator. न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए. जब भी न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा डिनोमिनेटर के पावर को, दैट टाइम वी हैव टू डू एक्चुअल डिवीजन. पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो वी डू एक्चुअल डिवीजन. व्हेन पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज फैक्टराइजेबल इनटू टू और मोर फैक्टर्स, this is important. Denominator has to be factorizable. Then only we can do partial fractions. Then the method of partial fractions is used to simplify the problem. Understand this with the help of an example. Look here. Now first understand the concept of partial fractions.
Suppose we have these two fractions. We have these two fractions. This is one fraction, this is another fraction. Suppose we want to simplify this, not integrate, just simplify. Alright? What we do is we cross multiply. Cross multiply. 15x minus 5 minus 8x plus 4. So this would become 7x minus 1 upon 2x minus 1 into 3x minus 1. Here we add two fractions. We add two fractions. Alright? These two fractions we have to simplify and make it into one fraction. Now this process of combining two fractions and making into one fraction is known as taking LCM. This process of combining two separate fractions and making into one fraction is known as LCM. Here we are given one fraction. We are given one fraction. Alright, not the same but a different type of question. Alright, एक ही फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको दो में स्प्लिट करना है. Alright, so we have to do the reverse procedure. दो फ्रैक्शन को कंबाइन करके एक फ्रैक्शन बनाना होगा. That is known as LCM. एक फ्रैक्शन में से दो फ्रैक्शन में स्प्लिट करना होगा. प्लीज नोट, इसका प्रोसीजर उल्टा है, नाम उल्टा नहीं है. दिस इज नॉट MCL. ये LCM है तो इसको MCL नहीं बोलते हैं. ऑलराइट, दिस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. So what is partial fraction? The process of splitting one fraction into more than one fraction. एक फ्रैक्शन में से दो फ्रैक्शन में स्प्लिट करने के प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. दो फ्रैक्शन को कंबाइन करके एक फ्रैक्शन में बनाएंगे, दैट इज LCM. एक फ्रैक्शन में से दो फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे, दैट इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. यहां पे डिनोमिनेटर में कितना ब्रैकेट है? दो, तो दो फ्रैक्शन आएगा. तीन होगा तो तीन फ्रैक्शन आएगा. चार होगा तो चार फ्रैक्शन आएगा. हमारे 12th के सिलेबस में मैक्सिमम दो या तीन फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम्स आएगा. या तो दो फ्रैक्शन होगा डिनोमिनेटर में, दो ब्रैकेट होगा, या तो तीन ब्रैकेट होगा. ऑलराइट, सो डिड यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन? दो फ्रैक्शन को कंबाइन करके एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज LCM. एक फ्रैक्शन को स्प्लिट करके दो में स्प्लिट करेंगे, दैट इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. पहले इसको फैक्टराइज करेंगे. इसका फैक्टर्स मिल गया. ये 4 इंटू -1 -4. -4 में से हमको -3 चाहिए, सो -4n + 1 तो -3 हो जाएगा. तो इसका फैक्टर्स आएगा 1 - x एंड 4 + x. तो we can write the factors either way. इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 1 - x का x - 1 हो जाएगा और ऊपर -2x हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट होगा
तो एक के नीचे आएगा 2x माइनस वन, दूसरे के नीचे आएगा 3x माइनस वन। अगर डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट होगा तो एक फ्रैक्शन में नीचे आएगा 2x माइनस वन, दूसरे में आएगा 3x माइनस वन। आई विल से लेट एक ब्रैकेट में नीचे आएगा, एक फैक्टर में नीचे आएगा x माइनस वन, दूसरे में आएगा x प्लस फोर। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा वो हमको पहले से मालूम नहीं है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, इधर नंबर्स आएगा, ये 5 and 4 है, नंबर्स आएगा। सो वी डोंट नो व्हाट नंबर्स वी गेट, सो वी राइट a and b. So whenever we have two brackets in the denominator, we write a upon first bracket, b upon second bracket. Whenever there are two brackets in the denominator, we write a upon first bracket, b upon second bracket. Now we cross multiply. ये डिनोमिनेटर से दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर मतलब सिर्फ न्यूमरेटर ही बचेगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, तो क्या आएगा, ये अभी मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट न्यूमरेटर ही लिखूंगा। सो माइनस 2x विल बिकम a टाइम्स अब ये a और b फाइंड करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मतलब a फाइंड करने के लिए b वाले फैक्टर को, b के कोएफिशिएंट को जीरो बनाने का, a फाइंड करने के लिए b के कोएफिशिएंट को जीरो बनाने का या तो डिनोमिनेटर को जीरो बनाने का। तो ये रूल ऐसा है कि यहां पे हमको x का वैल्यूज डालना है। ये इक्वेशन में x का कौन सा वैल्यू डालेगा, जो मन में आएगा वो वैल्यू नहीं डालना है, जो वैल्यू मैं बोलूंगा वो डालना है। यू हैव टू ये दोनों a और b के डिनोमिनेटर को जीरो बनाने का। a और b के डिनोमिनेटर को जीरो बनाने का। तो अभी x माइनस वन को जीरो बनाएंगे तो x का वैल्यू आएगा 1 एंड x प्लस 4 को जीरो बनाएंगे तो x का वैल्यू आएगा -4। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का तो इजीली आएगा आंसर। -1 x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, -2 a टाइम्स 1 प्लस 4। ये x इक्वल टू 1 डालेंगे इधर तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, और जब ये 1 डालेंगे इधर तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो b वाला टर्म चला जाएगा और a मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ a आएगा -2/5 एंड पुट -4। तो अभी क्या होगा, -2 इंटू -4। अब इधर -4 प्लस 4 0 हो जाएगा b टाइम्स, सो दिस विल बिकम +8। Therefore ये a और b मिल गया। अब इनका वैल्यू को हम यहां पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यूज को इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, -2x इक्वल टू -2x अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 विल बिकम व्हाट इज a, -2/5 upon and b will be -8/5। वैल्यू ऑफ b आएगा -8/5।
ये माइनस की वजह से बीच में जो प्लस है उसका माइनस हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो हमने किया, दिस इज नोन एज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमने एक फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में स्प्लिट किया। प्लीज नोट, अगर इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। ये एक्सप्रेशन को अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सिर्फ दिखने में डिफरेंट है, वैल्यू सेम है। पहले भी बोला है, मेकअप, चेहरे पे मेकअप लगाएंगे तो सिर्फ चेहरे का अपीयरेंस चेंज होता है, वैल्यू रिमेन्स सेम। वैसे ही लेट मी कंफर्म बाय टेकिंग द एलसीएम। लुक हियर, let us take the LCM. This right hand side I am writing. LCM will be 5 times either -2 times and -8 times. LCM ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? -2x -8 -8x plus 8 upon 5 times, ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, -10x अपॉन 5 टाइम्स, तो ये कैंसिल होके आएगा -2x अपॉन। तो कहने का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अलग नहीं है, इट इज द सेम एक्सप्रेशन रिटन इन 2 डिफरेंट वेज। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का नहीं, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यही एक्सप्रेशन आएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन अलग नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन का अपीयरेंस डिफरेंट है, वैल्यू सेम है। द डिफरेंस इज ये नॉन इंटीग्रेबल है, दिस इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, उसको हमने इंटीग्रेबल में कन्वर्ट कर दिया बाय डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलराइट, सो अब ये एक्सप्रेशन को मैं रिप्लेस कर दूंगा। ये एक्सप्रेशन जो है यहां पे, ये जो नॉन इंटीग्रेबल है, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। नाउ दिस एक्सप्रेशन वी आर रिप्लेसिंग बाय दिस एक्सप्रेशन। ये एक फ्रैक्शन के बदले ये दो फ्रैक्शन में स्प्लिट कर रहा है। ये -2/5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड 1 अपॉन इंटीग्रेशन this will become -2/5 log x minus 1 -8/5 log x plus 4 plus c is the answer. इंटीग्रेशन पार्ट इज वेरी इजी। इंटीग्रेशन पार्ट कितना स्टेप है? ये तो हमने फैक्टर्स लिया है, ये तो हमने सिर्फ फैक्टर्स लिया है, दिस इज नॉट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो यहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 3 स्टेप। ये हमने किया, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमने किया, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले व्हाट इज द पावर ऑफ न्यूमरेटर? इधर न्यूमरेटर का पावर 1 है और डिनोमिनेटर का पावर 2 है, सो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। नंबर 1, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर लीनियर है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जब भी आएगा, ऑलराइट, तो वी हैव टू ट्राई फॉर पार्शियल फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर इज फैक्टराइजेबल। इसका फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किया, 2 फैक्टर्स आएगा, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। -2x अपॉन ये 1 - x का x -1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट होगा
तो वी हैव टू राइट a अपॉन फर्स्ट, b अपॉन सेकेंड, देन क्रॉस मल्टीप्लाई. जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, जो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा. अवर जॉब इज टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ a एंड b. ये a और b का वैल्यूज निकालना है. वो निकालने के लिए द रूल इज, ये इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. मन में आएगा वो नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो. x टू फाइंड a we have to make denominator of a 0. मेथड याद रखेंगे. to find a make denominator of a 0. to find b डिनोमिनेटर ऑफ b को 0 बनाने का. तो x का वैल्यू 1, इधर x का वैल्यू -4. a और b मिल जाएगा, फिर उनका वैल्यू इधर रीसब्स्टिट्यूट एंड इंटीग्रेट. दिस इज क्वेश्चन 2. नाउ क्वेश्चन 3. थर्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. थर्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. ये नोट्स में सॉल्व भी दिया हुआ है. इसको फैक्टराइज करेंगे पहले. दिस इज अगेन numerator power is 1, denominator power is 2. Power of numerator is 1, power of denominator is 2. So this is again linear upon quadratic. और अगर denominator factorizable होगा, alright, तो ये साथ में ले लेंगे. 3 3 9, 3 27 और ये 14. तो हमको चाहिए +13, तो आएगा +27 एंड -14. दो फैक्टर्स आएगा. +27 एंड -14, इसका दो फैक्टर्स आएगा. 3 3 9, 3 27 +27, 7 2 14. तो -14 लिखेंगे क्योंकि हमको चाहिए +13. तो इसको अभी इसका फैक्टर्स हमको मिल गया. ऑलराइट, फैक्टर्स आना चाहिए निकालने के लिए. ऑलराइट, आई विल नाउ से लेट 12x + 3 अपॉन डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है. वी क्रॉस मल्टीप्लाई. We cross multiply. This will give you, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई, ये फैक्टर उधर मल्टीप्लाई. तो a टाइम्स 3x - 7 एंड b टाइम्स 2x + 9. अब क्या वैल्यूज डालने का? टू फाइंड a we have to make denominator of a 0.
तो ये दोनों को 0 बनाना पड़ेगा। तो x का वैल्यू आएगा -9/2। 2x + 9 = 0 मीन्स x का वैल्यू -9/2 और यहां पे x का वैल्यू 7/3। तो ये दो वैल्यूज डाल देंगे, -9/2 एंड 7/3। ये 2x + 9 को 0 बनाएंगे तो 2x = -9, तो -9/2 और 3x + 7 को 0 बनाएंगे तो 7/3। तो अभी क्या होगा, 12 टाइम्स -9/2 + 3 = 8 टाइम्स ए का वैल्यू आएगा 102/41 एंड अब 12 टाइम्स 7/3 + 3 b टाइम्स 2 times 7/3 + 9. This will make it 4 here. So 28 + 3 is b times 14 + 27/3. This will make it 31 is b times 41/3. So value of b आएगा 93/41. a आएगा 102/41, b आएगा 93/41। ये वैल्यूज को हम यहां पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आएगा 12x + 3 डिवाइडेड बाय 2x + 9 into 3x - 7 is equal to value of a 102 divided by 41 divided by 2x + 9 and 93/41 divided by 3x - 7। तो अब ये जो नॉन इंटीग्रेबल है, ये नॉन इंटीग्रेबल है, उसको रिप्लेस करेंगे बाय इंटीग्रेबल टर्म्स। सो इंटीग्रल I विल बी बीच में प्लस साइन है, दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा। दिस विल बिकम कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड होगा, अब ये 2 और 102 कैंसिल होके 51 आएगा, 3 और 93 कैंसिल होके 31 आएगा। दिस इज द आंसर। इधर कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड होगा।
Again, integration part of the problem is easy. Integration part is only 2-3 steps. You should know how to do partial fractions. Alright? You should know how to do partial fractions. Then it is easy. पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, दो फैक्टर्स आएगा 2x प्लस 9 3x माइनस 1. जब भी डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट होगा, विल राइट a अपॉन फर्स्ट b अपॉन सेकेंड. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, पहले वी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a टाइम्स 3x माइनस 7 b टाइम्स 2x प्लस 9. फिर कौन सा वैल्यू डालने का ये इक्वेशन में, a फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर ऑफ a को 0 बनाने का, और b फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर ऑफ b को 0 बनाने का. तो यहां से a मिल जाएगा, यहां से b मिल जाएगा, वो वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. ऑलराइट, और इंटीग्रेट. नंबर 4, नंबर 4, question number 4. This 4th and 5th are also important. 4th and 5th are also important. This is not linear upon quadratic. This is quadratic upon quadratic. Numerator भी quadratic है, denominator भी quadratic है. So here power of numerator equal to power of denominator. So we use adjustment method. Look here. एडजस्टमेंट मतलब क्या, जो टर्म डिनोमिनेटर में होगा वही टर्म न्यूमरेटर में लिख देने का. जो टर्म डिनोमिनेटर में होगा वही टर्म न्यूमरेटर में लिख देने का. तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स तो जैसा है वैसे ही रखा है. तो ये -6 का कॉम्पनसेशन +6, ये -6 का कॉम्पनसेशन +6, तो ये -1 एज इट इज रहेगा. अंडरस्टूड? सो दिस विल बिकम इसका दो फैक्टर्स आएगा, x प्लस 2, x माइनस 2 एंड x प्लस 3. ऑलराइट, इसमें वी कैन राइट द ग्रेटर फैक्टर फर्स्ट. अब इसमें या तो इसको ये 5 को साइड पे लेके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, 1/ab वाला फॉर्मूला. अगर वो नहीं करना है तो सिर्फ ये स्ट्राइक होना चाहिए कि डिनोमिनेटर के दोनों ब्रैकेट को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 5 आएगा. ये दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये जो 5 है ना, 5
ये 5 के जगह पे हम ये दो फैक्टर्स का डिफरेंस लिख सकते हैं. अगर ये स्ट्राइक हो गया देन द प्रॉब्लम बिकम्स इजी. ये न्यूमरेटर जो है 5 दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू ब्रैकेट्स ऑफ द डिनोमिनेटर. अगर ये स्ट्राइक हो गया तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा. दिस इज नाउ, इसको स्प्लिट कर देंगे. इधर x प्लस 3 कैंसिल होके 1 आएगा, इधर x माइनस 2 कैंसिल होके 1 आएगा, तो ये दो फैक्टर्स मिल जाएगा. ऑलराइट, नाउ सो देयरफॉर दिस will become again this is non-integrable. This is difficult to integrate. We can replace it by the two integrable terms. वन टू एंड थ्री टर्म्स, तो तीन इंटीग्रल में स्प्लिट होगा. वन का इंटीग्रेशन होगा x, 1 अपॉन x माइनस 2 का log x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस log x प्लस 3 अपॉन 1. कोएफिशिएंट 1 है, तो अब ये आएगा x प्लस log x माइनस 2 प्लस माइनस log x माइनस x प्लस 3 प्लस c. This is the answer to this problem. यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर इक्वल है. जब इक्वल पावर होगा वी यूज एडजस्टमेंट मेथड और डिवीजन. तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, वही न्यूमरेटर में लिखा. न्यूमरेटर में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मतलब माइनस 6 नहीं है, तो उसका कॉम्पनसेशन होगा प्लस 6 एंड माइनस 1 एज इट इज रखा. व्हाट इज 6 माइनस 1, 5. फिर उसको स्प्लिट कर दिया तो 1 आएगा. और इसका दो फैक्टर्स आएगा, x प्लस 3 एंड x माइनस 2. ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर को, तो न्यूमरेटर बन जाएगा. ब्रैकेट ओपन करो. अगर ये स्ट्राइक नहीं हुआ तो 5 को साइड पे लेके 1 अपॉन ए बी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. 1 अपॉन ए बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो भी यही आंसर आएगा. क्वेश्चन 4. नाउ क्वेश्चन 5. So we do question 5. 6x cube plus 5x square minus 7 upon 3x square plus 2x minus 1. This is power of numerator is 3, power of denominator is 2. So power of numerator is greater than power of denominator. So we do actual division. Whenever numerator power is greater than denominator power, we do actual division. तो ये जो
न्यूमरेटर है वो अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। पहले ये 6x³ और 3x² को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, वी मल्टीप्लाई तो आएगा 6x³ माइनस 4x² माइनस 2 माइनस 2x, वी चेंज द साइन तो 6x³ चला जाएगा, 5x² plus 4x² will become 9x², 0x plus 2x will be 2x and minus 7. Now ये 9x² और 3x² को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा प्लस 3, तो अभी 9x² माइनस 6x माइनस 3, वी चेंज द साइन माइनस प्लस प्लस, तो अभी आएगा 8x माइनस 4। अब इधर का पावर 1 है और इधर का पावर 2 है, मतलब आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वी अप्लाई द फॉर्मूला। ये हमारा f है, ये q है, ये r है और ये d है। f इज इक्वल टू q प्लस r अपॉन d, वी पुट द वैल्यू। अब ये जो है दिस इज आवर लाइक आवर प्रॉब्लम टाइप 3 का थर्ड क्वेश्चन, न्यूमरेटर लीनियर, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, दो फैक्टर्स आएगा। ऑलराइट, अब इसके लिए करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलराइट, तो दो फैक्टर्स है तो वी राइट a अपॉन फर्स्ट, b अपॉन सेकेंड, वी क्रॉस मल्टीप्लाई। a फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर ऑफ a को 0 बनाने का, x का वैल्यू -1/3, b के लिए x का वैल्यू 1, तो a आएगा 5, b आएगा 1। सो योर फाइव अपॉन 3x plus 1 and 1 upon x minus 1. अभी I will now say after this equation 1 becomes, now this step is important. प्लीज नोट, ये जो है ना ये एक्सप्रेशन, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मिलने के बाद डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर देने का, इक्वेशन 1 बिकम्स। ऑलराइट, सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 6x³ 5x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस, अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है उसके बदले ये लिखेंगे 5 अपॉन अब ये जो नॉन इंटीग्रेबल था ये u अपॉन v टाइप का है जिसका इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ये जो नॉन इंटीग्रेबल है उसको रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेबल टर्म्स से। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 विल कम आउट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, 5 will come out 1 upon this 2 and 2 gets cancelled. This becomes the answer. This is the answer to this question. So, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। यहां पे न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा है, सो वी हैव टू डू एक्चुअल डिवीजन। ऑलराइट, वी डिवाइड, तो अभी क्या होगा, ये
डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, ऑलराइट। इधर 9x² और 3x² को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देन वील यूज दिस फॉर्मूला f इज इक्वल टू q प्लस r अपॉन d। तो ये f है, ऑलराइट। फिर ये जो टर्म है, ये जो नॉन इंटीग्रेबल है, उसको 1 2 3 टर्म में कन्वर्ट किया, ऑलराइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये अभी भी नॉन इंटीग्रेबल है, तो उसको वी डू पार्शियल फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट है, तो वी राइट a अपॉन फर्स्ट, b अपॉन सेकेंड, ऑलराइट। तो अभी a टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई, a फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर ऑफ a को 0 बनाने का, b फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर ऑफ b को 0 बनाने का, ऑलराइट। बाई चांस अगर आपने ये दो फैक्टर्स को इंटरचेंज किया, ये दो फैक्टर्स को आपने इंटरचेंज किया, a के नीचे x माइनस 1 लिखा और b के नीचे 3x प्लस 1 लिखा, तो आपका a और b का वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएगा। आपका a 1 आएगा और b 5 आएगा, ऑलराइट। तो वैल्यू इफेक्टिवली विल रिमेन द सेम, ऑलराइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, a और b मिलने की खुशी में है, ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं भूल जाने का। ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है विच इज 2x प्लस 3 प्लस दिस। तो इसका वैल्यू ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इंटीग्रेट, ऑलराइट। दैट इज द आंसर। सो आज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया, ऑलराइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का सेकेंड लेक्चर लेंगे, जिसमें हम और थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ऑलराइट। थैंक यू।